Jodhpur, located in Rajasthan, boasts a fascinating history that traces back to the 15th century. It was in 1459 that it was carved out of time under the kingship of the Rathore king Rao Jodha. The fort, which catered as a home for centuries to such great leaders, is now known as the Mehrangarh Fort, meaning the Fort of the Sun. The fort today is seen as the emblem of Jodhpur's rich cultural heritage, attracting millions of visitors every year who come to admire its architectural splendor, learn about the city's history, and bask in the royal grandeur of Rajasthan's past. The fort was constructed strategically and placed on the top of the hill overlooking the entire city of Jodhpur. For the people of this vibrant city, Hatai has been an age-old practice. Going through the lanes of the old city, this is actually a very common sight, and if you are jolly enough, you might as well end up in a Hatai session. कि मंजिल आएगी पास हमारे पास मंजिल पे हम तो यार मंजिल अपने पास आप कहाँ से आए पश्चिम बंगाल से आए ना हाँ तो आप यहाँ आ गए ना मंजिल पे आ गए आपको लगा नहीं था कि भाई हमारे से मुलाकात होगी पर हो गई वो गौर सबको मिला था आप मिले हम भी मिले. One very intriguing feature of the old city are the lanes of the city. They are very small, connected and interconnected on an intricate level sloping down. But this is not the only special thing the city has to offer. As one walks down the streets, you might also notice some water bodies, which could be a jhalra or bauri or even a talab. You would be told that the land had been cursed of water, and that is why the royal family, particularly the women, took it upon themselves to build such an amazing network of water bodies widespread over the city. Or we can also opt for the logical explanation of why the rulers had built the network of water bodies because of Jodhpur being in an arid region. Is it even possible that we talk about a city and its community and not talk about their food and attire or even their markets? Very surprisingly, the aspect of market and food and attire are intertwined very beautifully. To simply put it, they are vibrant, they are full of color, they are cheerful, warm and most importantly enjoyed by all. जोधपुर की दो चीज़ें फेमस है, खंडा और खावन खंडा. खावन आपकी यहाँ पर हर दुकान की एक स्पेशल मिठाई फेमस है. वहाँ जाओगे तो गुलाब जामुन वहाँ का फेमस है. गुलाब जामुन लेने पर आदमी वहीं आएगा. आपको मालूका खाना है, मालपुआ खाना है तो वो अलग दुकान है. घी की कचौरी खानी है तो वो अलग दुकान है. हर दुकान का अलग चीज़ फेमस है. After walking for so long, we would feel the heat and might be also a little sweaty. But the question here is, was Jodhpur always like this? Let's find out the answer while cooling off a little while sipping onto the age-old Makhania Lassi of Mishalal Sweets. पहले क्या है कि जोधपुर के अंदर पहले इस टाइप की गर्मी नहीं पड़ती थी. पहले हमारे यहाँ पे लू पड़ती थी, मतलब बहुत गर्म हवा चलती थी. 48 to 50 डिग्री टेम्परेचर रहता था. उस टाइम हमारे को कोई ऐसा नहीं लगता था. अभी जो हीट आ रही ना, ये आ रही ह्यूमिडिटी वाली है बिकॉज ऑफ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. तो
इस हीट के कारण क्या है कि अब हमारे को लगने लग गया है कि हमारे को भी एसी में बैठना चाहिए। ये थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ है ह्यूमिडिटी की वजह से। बाकी हमारे को 50 डिग्री में भी हम लोग ऐसे घूमते थे क्योंकि हवा बहुत चलती थी हमारे, और सब ऐसे जैसे लस्सी है जैसे प्रोडक्ट सब जगह मिलते थे, ऐसा कोई नहीं कि आदमी अनकम्फर्ट होता था 50 डिग्रीज में भी। अब तो 40 से 42 होते ही हालत ख़राब होने लग जाती इस हीट में। जो आप लोगों का कॉर्पोरेशन है एक हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत वो लोग बहुत चीज़ें करना ऐसा चाहते हैं कि जो समर का जो महीना है जहाँ पे हीट वेव्स आने का संभावना होता है वहाँ पे लोग कैसे बच सकते हैं, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है या आप लोग अपने दुकान के हिसाब से कुछ अलग करते हो गर्मियों के हीट एक्शन प्लान तो पहले से मौसम ने कर ही दिया ना सर। हमारे गर्मियों के अंदर भी बारिश आई हर हफ्ते में। जी तो ये तो हमारे उससे पहले मौसम ने कर दिया, इसको जोधपुर वालों को करने की जरूरत ही नहीं। इस साल तो टोटल पूरे यार बारिश आई है हमारे। जी जी। Jodhpur has always been a dry city. However, the problem of humidity is rather a recent one. Scientifically, while the temperature has only increased by 0.6 degrees centigrade over the last century, it is the increase in humidity that is increasing the discomfort amongst the residents. Let us hear from someone who is at the forefront of climate change. और सर आप जोधपुर में कब से हो? हम ये 10 पीढ़ी से हैं, मतलब कल 250 साल से है। 250 साल से हमारे बुजुर्ग हैं। जैसे इस साल का गर्मी अलग ही है, मतलब ज्यादा पसीना है। इधर हम बोलते इसको उमस बोलते, उमस। अच्छा, उसका ये मतलब बरसात के अंदर ये जो हवा गर्म नहीं होती है मगर वो पसीना बहुत आता है, मतलब हाँ। ये बरसात के मौसम में, हाँ, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं उमस। आप लोगों के जो देसी नुस्खे होते हैं गर्मी, पहले लू के लिए आप लोग क्या करते हैं, या फिर अभी जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आप लोग क्या करते हो? बेसिकली घर के नुस्खे जो है, ये शक्कर के लड्डू है वो पानी में घोल के पीते हैं। अच्छा, ये केरी का पानी जो कच्चे आम होते हैं ना उसका हाँ। पानी पीते हैं। कि पहले जो तालाब का या बावड़ी का वो जो सिस्टम था जो चल रहा था तब से, वो कैसे गायब कैसे हो गया? मतलब अभी कोई यूज नहीं करता है, कुछ इसका नहीं यूज होता है। नहीं होने का कारण ये है कि हर घर में नल आ गया। नल आने की वजह इनकी उपक्षय होने लगी। मतलब नहीं, ये इधर हमारे तो क्या है कि ये जो हम मेहरानगढ़ के जस्ट नीचे रहते हैं ना, हाँ जी, तो हाइट में रहते ऊपर, मतलब हाँ, तो जो वो सिटी के बाहर जो निकलते हैं ना, सिटी वॉल के बाहर, हाँ, तो वो शहर नीचे बसा हुआ, मतलब तो उधर जाके पानी की समस्या बहुत हो जाती है। मतलब पहले जो टाइम था ना तकलीफदेही था, मतलब अब जो फैसिलिटीज हो गई, मशीनरी युग है। पहले लेडीज को बहुत काफी दूर से जाना, मतलब कोई 100 फुट से कोई 200 फुट से सर पे घड़ा रख के लेकर ना, फिर वह नंबर वाइज लगते हैं, मतलब अच्छा, 1 भर लो 2 भर लो, मतलब तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता, अच्छा, दिक्कत होती, मतलब। Not everyone is at the receiving end, and we were fortunate enough to meet Dheeraj Chauhan, a young ward councillor who tries to bring history and science together for the economic upliftment of his ward. मैंने कहा एक बार आप रात को आए ना तो पूरा लाइट वाइट के साथ भी देख सकते हो। और 6-7 दिन बाद मैंने वो नाइट टूरिज्म के लिए पूरी वो लाइटें मंगा दी और 6-7 दिन लगेंगे तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा ऊपर। फिर जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा और लोगों से जानकारी ली तब पता चला मेरे को कि ये ब्लू सिटी करने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी थे और उनकी एक परंपरा भी थी। तब साइंटिफिक रीज़न के बारे में मैंने पढ़ा तब पता चला कि जब आप इसको कैल्शियम क्लोराइड से पेंट करते हैं तो उस वजह से जो इनकी दीवारें होती थी उस पर इंसेक्ट्स जो होते थे वो आके नहीं बैठते थे, और दूसरी चीज़ जो गर्मी थी यहाँ पर जिसकी वजह से इसको सन सिटी भी कहा जाता है, तो वो भी बिल्कुल कम हो जाती थी। तो लोगों का जो कंसेप्ट था कि अपने घर को ठंडा कैसे रखे, तो उस चीज़ को भी मैंने फॉलो किया। तो ब्लू सिटी करने से मेरा ब्यूटिफिकेशन भी हुआ और लोगों के घर में जो ठंडक पहुँचने चालू हुई वो भी हुआ। तो एक साथ इसके मेरे पास 2 फायदे मिल गए।
इसलिए मैंने इसको ब्लू कराया। ब्लू कराया तो लोग इसको देखने आए और लोगों को ये अच्छा भी लगा, मोहल्ले वालों को भी अच्छा लगा और बाहर वालों को भी अच्छा लगा। तो धीरे धीरे जब मुझे लगा कि यार जब लोग आ रहे हैं उनसे बातें करते थे तो वो बताता है यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ब्लू आपने ये ब्लू सिटी तो करी है लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर आप ठंडा करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए हमने क्या किया कि हर घर के बाहर हमने छोटे छोटे फ्लावर्स लगाने की कोशिश करी, क्योंकि ग्रीन सिटी होती है तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन भी होता है। तो ब्लू सिटी के साथ साथ इसको हमने ग्रीन सिटी डेवलप करने में भी कोशिश करने चालू हुई। इससे दूसरा मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जैसे हमने ब्लू के साथ ग्रीन सिटी करी तो जो टूरिज़्म का लेवल था वो यहाँ पर बढ़ गया। जब पहले बार मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग ली है हीट जोन के लिए, तब मुझे लगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी अगर इतनी सोच रहे हैं तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। तो उसलिए मैंने सोचा कि अगर देश के लिए हीट जोन को कवर कर रहे हैं तो मुझे भी मेरे लोगों को हीट जोन कवर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये चीज़ें सीखी। As we speak with Dheeraj, one thing that keeps popping up is that the blue houses are cooler when compared to the other houses. But again, the scientist inside us keeps questioning that is it just the blue color or are there other factors involved which helps in keeping the houses cool? So this is the prototype for measuring temperature and humidity. The most important components of this prototype are the DHT sensor, which measures humidity and temperature, and then once it is measured, we have two ways of getting the feed. Either we can get a live feed through this Wi-Fi controller if connected to a Wi-Fi, or the data can be stored in this micro SD that is provided here. This this feed is coincides with the real time through this real time clock provided here. And this entire setup has a 24-hour battery backup through this 300 mAh battery that is provided along with this prototype. After the development of this device, we visited couple of houses in the city of Jodhpur. We made sure the houses were traditional blue houses of Jodhpur. It was amazing for us to find out that there was a difference of about 5 degrees to 6 degrees Celsius between outside the house and inside of the house. What is more amazing is that as we move interior into the house, there was a difference of about 1.5 degrees Celsius between each room. मैडम खुद जोधपुर की हिस्ट्री की पहली लेडी गाइड है जिनके पास राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का गाइड का लाइसेंस है आपके पास भी था। अभी करंटली अभी जो जैसे वेदर है उसमें डिफरेंस कितना आपको लगता है? अभी ज़्यादा है टेम्परेचर, पहले कम था। बस टेम्परेचर ही राइज हुआ है और कुछ और जैसे आपको अभी इस टाइम में बारिश ज़्यादा हो रही है, पहले नहीं होती थी इतनी बारिश यहाँ पे। अंदर उस रूम के अंदर बिना एसी के खाली पंखे के अंदर अच्छी तरह सोच सकते हैं। ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं, नॉर्मली हमारा जो घर है वीरसा का, हमारा जो घर है उस घर में आपको खूब मच्छर मिलेंगे। इस घर में एक भी मच्छर नहीं है बिकॉज ऑफ ये कलर। अंदर रहने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि ब्लू कलर में पेंट किया हुआ घर उसमें मच्छर भाग जाते हैं, कलर ऐसा है। सही बात है। और दूसरा, अगर दूसरी जगह आप टेम्परेचर 45 है तो आपको यहाँ 38 के आसपास, अंदर जो है 35 के आसपास से टेम्परेचर मिलेगा आपको। अगर पहले वाली चीज़ ही अपनाओगे तो आपको इतना फील नहीं होगा गर्मी, नहीं होगा। हाँ, जैसे लू लग जाती है तो इमली का पानी साथ में वो चिलड़ी डाल देते तो वो आपकी हीट कम कर देता है शरीर को। अभी लोग करते हैं वैसा, मतलब कई लोग करते हैं। अभी जो न्यू जनरेशन है सिंगल रह रहे वो नहीं करते। जॉइंट में जो है जिनके दादा नाना नानी सब जो लोग हैं बड़े तो वो करते हैं अभी भी। जैसे हमारी मम्मी बनाते थे तो अब हम बनाते तो बच्चों ने देखा तो वो भी बनाते हैं। ये सब देख के वो चलती रहती है परंपरा। तो अभी यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि रेन वाटर को आप स्टोरेज कर सकते हो। अच्छा, नहीं है पानी सीधा निकलता है। पहले भी नहीं था। नहीं, पहले भी नहीं था। और जो है बने हुए सोर्सेज पानी के, जैसे रानी सर, पदम सर, ये पानी जो कुएं बने हुए पास में वो वाले घर में नहीं है। घर में पर्टिकुलरली यहाँ पे किसी के नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हाइट पे हाँ, वो हाइट पे तो सब निकल जाता है। अच्छा।
Just like her, if you ask any other tour guide of the city, they would explain it to you by saying that the blue color keeps the houses cool. Again, a question which arises here: was this initially the thought behind bringing the color in existence? उसमें कोई विशेष साइंस नहीं है। अब चूंकि यहाँ पत्थर उपलब्ध ज़्यादा हैं इसलिए पत्थर के मकान बने हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले तक कच्चे मकान भी बहुत थे, पत्थर के भी बनाते थे, लेकिन ऊपर जो है वो घास फूस वाला बनाते थे। तब पुराने शहर के अंदर ये एक संयोग कह सकते हैं आप, जोधपुर जो है वो ब्लू है। वैसे तो ब्लू सिटी विश्व में और भी कई जगह हैं। We were fortunate to meet few of the most learned historians in Jodhpur who narrated the oral history as to how the city became the Blue City. Earlier, the residents of Brahmapuri, the Brahmins, wanted to be respected in the society as their locality was no longer only for them, but were now the residential area for people from outside the caste. Following this, a proposal was made to the then king, stating that they wanted to be distinguished so as to people could show them their respect. After a lot of salamashwara, it was decided that they would paint their houses with a different color. The male members of the community were devotees of Lord Shiva, who is known as Neelkant, the lord who drank the poison so as to save the earth. What color could have been of greater significance to them than the color blue? As for the ladies of the community, they were all devotees of Lord Krishna, hence the color blue was divine to them. This being the mythological part of decision making, the other perspective was that of the prevalent caste system. Brahmins being the top tier of the caste system, they also stated that the color of the sky is also blue, which shows their prominence in the society. Hence the color blue. In fact, the easy availability of indigo also influenced the selection, and so the entirety of Brahmapuri became blue. Indigo mixed with lime also acted as an insect repellent. Fast forwarding the time to 1994, when Jungle Book was being shot in the city. The crew wanted a few lanes to be blue, thus permission was taken from then administration and a particular stretch of the street was painted blue. Eventually, blue had crossed the boundaries of Brahmapuri and people started to color their houses blue inside out, especially during Diwali, the festival of lights. It was after 1994, that is the late 1990s, when Jodhpur saw a significant rise in tourism, especially the footfall of foreign tourists had increased. The moment when they entered the particular street, the sight left the tourists in awe. The immediate expression that came out was, "Wow, Blue City?" And that is how Jodhpur got its title. तो ये जो घर है ये लगभग 450 साल पुराना है। तो इस घर के अंदर अगर आप खड़े हैं और अभी हम कूलर और इस फैन को बंद करते हैं, उसके बाद में भी जो रूम टेम्परेचर यहाँ का है और जो बाहर का रूम टेम्परेचर है उसके अंदर 4 से 5 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। हमारे ये जो मकान है ना, ये इतने पुराने हैं। दूसरी बात, इसकी जो ये दीवारें हैं पीछे की, जी जी, ये इनका जो चौड़ाई है वो 3.5 फीट इनकी चौड़ाई है। दीवार की चौड़ाई आज जो दीवार बनती है सिर्फ 1 फीट, 1.25 फीट से ज़्यादा होती नहीं है। बिल्कुल। इन दीवारों के बीच में क्या है, एक्चुअली पूरे पत्थर नहीं है, आसपास में पत्थर चौड़े सब फुट टाइप में जैसे, और बीच में क्या है, यहाँ पहले एक मटेरियल आता था, मिट्टी होती थी एक तरह की रेड कलर की, अभी इनके घर में तो सारी निकली वो बाहर चली गई। मूड, जिसको हम अपने इतिहास की भाषा में उसको मूड ही बोलते हैं। अच्छा। और वैसे भी मूड ही बोलते थे, रेड कलर की होती थी। उसके अंदर क्या होता, थोड़ी चिपचिपाहट होती है, जैसे आजकल इसमें सीमेंट में आती है वैसे। तो उसके अंदर क्या करते थे, उसके अंदर ही छोटे छोटे पत्थर डाल के बीच में जमा देते थे। कोई चुनाई नहीं होती थी, बस ऐसे ही वो डाल देते बस। पर वो आज भी क्या है कि वो ठंडक रहती है, क्योंकि वो गर्म होती नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ लोहे का मटेरियल पहले पुराने ज़माने में बिल्कुल नहीं था, सारा पत्थर का मटेरियल होता था। और पिलर बन करके, पिलर के ऊपर जो है ये गाटर जो पत्थर के ही होते थे, इनको अपन बोलते थे क्या, पाट बोलते थे। गाटर की जगह ये पाट लगते थे, और इन पाट पर और इन पिलर पे ही सारा मकान है। अभी तो ये थोड़ी सी नमी आ गई है,
नमी आ गई है। नमी नहीं होना तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है कि ठंडक होती है। जब हम जिस समय यहाँ ये जून महीने की गर्मी होती है, उस समय आप बाहर से आओगे तो इस कमरे में बैठ जाओगे तो आपको एक बार तो नींद आ जाएगी, थक के आओगे तो आपको फैन की जरूरत नहीं, कुछ भी मतलब जरूरत नहीं रहती है। अभी तो ये नमी की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है, बाकी नमी नहीं होती तो इतना कुछ नहीं होता है। तो मतलब आपको एसी वेसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है? नहीं, एसी की तो हमारे शहर में लगभग लोगों के घरों में एसी नहीं है, किसी के, मेरे घर में भी नहीं, आज तक नहीं लगाया। ये ठीक है, कूलर भी अब आजकल के जमाने के हिसाब से कोई आता है तो कूलर तो थोड़ा रखना पड़ता है, बाकी हम सोते बिना कूलर ही है, सोते। और दूसरी बात ये, जब ये सब चीजें जो घटते थे ना, ये सारे लोग, ये सब हाथों से होती थी, मशीनें कहाँ थी उस समय? मशीनें नहीं थी कितने, और उन कारीगरों में भी इतनी मजबूती थी, कोई इतनी भारी भारी पत्थर बिना मशीनों के ऊपर चढ़ाते थे, उनके पास किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं होता था, सारा उनके शरीर से ही काम होता था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा किला इतना ऊपर है, तो सारा मजदूरों ने हाथों से ही किया काम। तो उस समय कोई वो थी नहीं, मशीन से ऊपर चढ़ा दो, उससे चढ़ा दो, वो तो कुछ था ही नहीं उस समय। कारीगर अब सब मशीनों का काम है। अब तो हाँ, क्योंकि अब उनमें इतना वो रहा भी नहीं मजबूती, शरीर में मजबूती, खान पान वैसा नहीं है। अब पुराने खान पान का बहुत फर्क था। पहले की जमाने के लोग प्योर घी खाते थे, आजकल तो घी भी प्योर नहीं आता, वो भी मिलावटी आता है। नहीं, घी नहीं, पानी नहीं है भाई, कुएं में से खींच के पानी लाते थे, आधी ताकत तो हमारे को पानी खींचने में आ जाती थी। वो तो आपका जो एक्सरसाइज था, अब तो एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है, हमको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। हमने तो कुएं में से यूं एक हाथ से यूं डोलती फटाफट भर के निकालते थे, और मटका जब भरते थे तो मटका रख के खुद के ऊपर, मटके के ऊपर छोटा मटका खुद के हाथ से रखते थे। 1 किलोमीटर से आपको कैरी करना पड़ता था, 2 किलोमीटर से पानी लाते थे। और उसके बाद में ये रहता था कि वापस चक्कर काटना पड़ेगा, तो छोटी बाल्टी होती थी जो पानी निकालने की, उसको भी भर के हाथ में लेके आते थे कि इसको भी खाली नहीं ले जाएंगे। चक्की चलानी पड़ती थी, आटा हाथ से पिसता था। यहाँ हमारे यहाँ लगी हुई थी, अब हमने हटा दी, अब काम ही नहीं आती, इसलिए यहाँ बड़ी वो चक्की लगी हुई थी, यहाँ छोटी चक्की लगी हुई थी जो दलने के काम आती थी, सब घर में होता था। By now we have come to this point where we can say that temperature has been increasing and humidity has become a concern. Rainfall is erratic. Women of the house recall that rains were once comforting, but now it is torrential. It is often said that the effects and impacts of climate change is differential. Women experience and feel the consequences more than a man does. To know more about this, let us partner with the Samvi Trust, an organization which has been working for women empowerment in Jodhpur and the other cities of Rajasthan. हम लोगों को आपकी विचारधारा को समझना है कि इतनी जो गर्मी सर्दी जितने भी मौसम चल रहे हैं, पर उसमें हमारी डे टू डे एक्टिविटी कैसे इम्पैक्ट होती है। इस बार जो हम लोग घर में भी काम कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये उमस टाइप लग रहा है। वैसे गर्मी जैसा भी नहीं है, लेकिन इसमें बीपी ज़्यादा लो हो रही है, किसी की हाई हो रही है। तो ये वाला टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा लगा इस बार मुझे। इस बार की गर्मी मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी। कुछ है ना, मेरे को डायबिटीज़ रहती है, तो मैं इतना परेशान, इतनी थक जाती हूँ सुबह सुबह की, मतलब एक सांस निकलना बाकी रहता है, इतनी मतलब शरीर में कमजोरी सी आ जाती है। फिर जल्दी जल्दी काम करना और फिर ध्यान रखना अपना खुद का भी साथ साथ में। मेरा नाम मोनिका है, मैं जोधपुर से हूँ। और गर्मियाँ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम लोग पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। प्लस ये जो गाड़ियों का धुआं होता है या फिर जो पॉलीथीन वगैरह है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। एक तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है, जिसकी वजह से भी बहुत हो रहा, और हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और सबसे ज़्यादा ये जो लाइफ थी हमारी, जो प्राकृतिक जिस तरह से हम रहते थे, वो ना होकर सब बहुत ज़्यादा ये आधुनिकीकरण बहुत आ गया है। इस वजह से भी गर्मी हो रही है। मशीनें बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, हर जगह एसी कूलर बहुत ज़्यादा है, और पेड़ पौधे की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है। उससे पेड़ पौधे कम होंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी। गर्मी अब की बार जो उमस थी ना, उसकी वजह से बहुत हालत ख़राब हो रही थी। और पिछले साल जो थी उमस कम थी, हर साल जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से हम लोग बीमार भी ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे घर में अभी लगभग हर
घर के सारे मेंबर कुछ ना कुछ सफरिंग कर रहे हैं गर्मी की वजह से। तो यही है कि पहले हम लोग क्या था कि ज़्यादा इतना एसी कूलर इतना इस्तेमाल नहीं करते थे। घरेलू चीज़ें गर्मी में मम्मी जो है ना घरेलू चीज़ें बनाती थी, खाने में मेन्यू चेंज हो जाता था, खान पान बिल्कुल बदल जाता था। मम्मी हम कहते भी थे, फिर भी मम्मी फोर्स करती थी घर का बना खाओ, और ये ठंडे की जो चीज़ें होती थी, फ्रिज का खाना कम खाने देती थी मेरी मम्मी, बिल्कुल प्रेफर नहीं करती थी, बिल्कुल उनको पसंद ही नहीं था घर में फ्रिज। तो अब हम बिल्कुल उस पर ही डिपेंड हो गए हैं। गर्मी में आते ही बस फ्रिज खोल के ठंडा पानी पीना है, रेडीमेड कोल्ड ड्रिंक पीनी है, घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल, टाइम भी नहीं है हमारे पास में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ जुड़ के भी इफ़ेक्ट डाल रही है। पहले घरों में एसी वगैरह कूलर वगैरह नहीं थे, फैन में ही चल जाता था, और अब क्या एसी में बैठे रहते हैं, फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली जब हम लोग पहले यूज़ कम करते थे, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब पहले कम यूज़ किया जाता था, मतलब ना के बराबर ही था, पंखे भी नहीं होते थे किसी घरों में। अब हम लोग क्या है, एसी कूलर, तो ये जो एसी कूलर ठंड जो हमें पहुंचा रही है, इसके अंदर एक गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी अदर गैसेस होती है, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर जाती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ये बेसिकली साइंस का टॉपिक मैं लेके आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बट उससे क्या हो रहा है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दूसरा ये है कि हमें लगता है कि इस बार गर्मी ज़्यादा है, अगली बार भी हम ये सोचते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, बट मेनली मुझे ये लगता है कि हमारी हैबिट चेंज हो चुकी है। जैसे कि अभी जनसंख्या भी बढ़ रही है, उस वजह से लोग क्या पेड़ काट रहे हैं और वो अपने लिए वहाँ पे आवास लायक घर वगैरह बना रहे हैं, इस वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है गर्मी में ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि पेड़ काट रहे हैं। अपन को पेड़ों से तो लाइक अपना एनवायरनमेंट सही रहता है। मैं कहना चाहूँगी जितना मैं जानती हूँ, जो ये हम लोग एसी कूलर गाड़ियाँ ये इस्तेमाल करें, इनसे जो गैसें निकलती है, इससे हमारी जो धरती के जो आसपास ओजोन लेयर है ना, वो घट रही है, वो जगह जगह से ख़राब डैमेज हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं। जो सूरज है, जो सूरज की जो किरणें आती है सीधे धरती, सीधे नहीं होके उस ओजोन परत से छन के आती है, वो जो अब है ना वो बढ़ रही है, सीधे डायरेक्टली धरती पर आ रही है। तो उससे भी जो ये गर्मी है, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शायद वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। हम तो अब गाड़ियों का भी यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एसी का भी यूज़ नहीं कम कर रहे हैं, कुछ भी कम नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे गैसें सारी बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेस आ तो रही है लेकिन वापस जा नहीं रही है, उसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं वो सारी हो रही है। जैसे हम ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, अब वो अपने आप क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पिघलना शुरू हो रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, ओशन इन सब में वाटर लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना रहती है। उसके अंदर जो भी है जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट होता है, पेड़ पौधों को इफेक्ट होता है, उसकी वजह से पेड़ पौधों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी इफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये गर्मी उस वजह से बढ़ रही है। मतलब पहले कभी समर ब्रेक नहीं होता था, ऑफिसों में ज़्यादा गर्मी बढ़ने से न्यूज़पेपर की कटिंग बता सकते बच्चों को कि ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, इसलिए स्कूल्स का टाइम, ऑफिस मतलब स्कूल के पहले गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, और जो ऑफिसेज हैं उनमें उनका टाइम चेंज होना, उनके छुट्टियाँ होना, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दिन प्रतिदिन मैं अपनी उम्र में देख रही हूँ कि ये मतलब 5-6 सालों से ये चल रहा है। पहले विंटर ब्रेक होती थी, लेकिन समर में ऐसा नहीं होता कि हीट के कारण छुट्टियाँ हो रही है या एक वीक टाइमिंग चेंज हो रहा है, या ये सब ये अभी गर्मी के बढ़ने से पेपर्स में तो आ ही रहा है, सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। उसके साथ ये जो हो रहा है कि बढ़ेगा तभी सरकार भी उसके अकॉर्डिंग कुछ लेगी, ये कारण और अधिक गर्मी के कारण अभी बेमौसम बरसात भी होती है। वो ही नहीं दिखते, पहले बहुत दिखते थे। क्या ये मुझे पूछना है क्वेश्चन, क्या है ग्लोबल वार्मिंग का असर है? मुझे नहीं पता। कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एकदम से पड़ जाती है, बारिश का मौसम एकदम से तेज़ बरसात आती है, एकदम से तेज़ ठंड होती है, फिर पूरे मौसम में सर्दी नहीं पड़ती है। तो क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे चिड़िया कम दिखने लग गई है, मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। कई सारे जैसे अब ज़्यादा गर्मी पड़ गई, अब बरसात एकदम से तेज़ आई, पहले रिमझिम आती थी। मेरी मम्मी कहती है सीज़न के हिसाब से आती थी, सावन महीने में रिमझिम आती थी, और सावन के बाद में तेज़ गरज के साथ बरसात आती थी, मई जून में आंधियाँ आती थी। अब ये एकदम से सडनली होता है।
जोधपुर में ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या टेम्परेचर बढ़ा है? ये कुछ ऐसा सा आएगा, शो योर स्ट्राइप्स। तो 1890 लिखा हुआ है और आगे 2010 लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी है। तो ये कलर में आपको एक्चुअली में दिखा रहा है कि टेम्परेचर सही में चेंज हुआ है। और ये एक्चुअल वही जो मैम बता रही थी टेम्परेचर डेटा है, और ये दिखा रहा है कि मतलब ब्लू जो बहुत ही कूल और सुकून वाला था उससे चेंज होते होते आज के तारीख में आप देखो लाल जो है वो कितना गाढ़ा हो गया है। ये सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा है कि नील अच्छा है और लाल नहीं, इसके पीछे जो है एक्चुअली डेटा है कि टेम्परेचर कितना है। तो आप खुद सोचो कि नील से लाल पहुंचने में कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो कल को कोई भी आपसे पूछे, कोई बच्चा आके पूछ ले कि भाई क्या प्रमाण है, आप ऐसे ही बोल रहे हो ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये हुआ है देखो। इसके बाद भी अगर आप बोलते हो कि नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो आप बेवकूफ़ ठहरे। हमने एक बहुत बड़े पैमाने पे हमने चीज़ें देखी, हमने समझी। अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी रोज़ की जो निजी ज़िंदगी है, जो आप डे टू डे लाइफ में है, 2 मिनट आप ये सोचिए कि आप क्या ऐसे एक्शंस ले सकते हैं आपकी तरफ से जो कि एक छोटा एक्शन होगा पर आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। 30 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आप, जब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती थी तो उसमें उससे पहले ही ठंडाई जो अपने सौंफ होती, सौंफ, इसमें बादाम, ये खरबूजे के बीज, 4-5 चीज़ें होती हैं, को मिक्स करके रखते और मिक्सी में नहीं पीसते थे, सिला होती थी, उस पर पीस के और है ना दोपहर में चाय का भी काफ़ी नहीं था 30 साल पहले, इतना 30-40 साल पहले चाय भी दोपहर में पिलाए तो उसकी जगह वो ठंडा ही पिलाते थे। फिर साथ में ना छाछ वगैरह लेके जाना ज़रूरी होता है क्योंकि उमस की गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस बार। ये है कि हम लोग खाना थोड़ा लाइटली ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले रहे हैं। एक होता था अम्ल वाला, इमली का पानी भिगो के रखते थे और शाम को सबको पिलाया जाता था। यही सब चीज़ें थी ठंडे के लिए। और जैसे भाई अभी जो होती है, अभी ये नाइसिल पाउडर लगाते हैं, हाँ, तो पहले भी गर्मियों में धमोरियत होती थी तो उस टाइम जो अपने इसको मुल्तानी मिट्टी, उसका बिल्कुल पतला सा लेप करके और वो जैसे किसी के पीछे हो रही तो दादी जी लगा देते थे। बहुत छोटी छोटी जगह पे अगर जाना है आसपास तो बिना पैदल भी जा सकते हैं, उससे धुआं होने से मतलब प्रदूषण होने से बचेगा। और पहले के लोग साइकिल यूज करते थे गाड़ियों की जगह, तो वो फिर वापस से थोड़ा स्टार्ट हो तो उससे क्या प्रदूषण बचेगा। और पेड़ पौधे लगाए जाएं, आसपास का जो कचरा है उस पर थोड़ा ध्यान दे के हर हफ्ते साफ़ किया जाए तो हो सकता है इससे थोड़ी गर्मी जो है वो कम होगी। What we can possibly conclude after interacting with more than 30 women coming from different parts of the city is that there is a lack of awareness. Whether there is a heat action plan or not, the general trend is to fall back on the practices which has been a part since times immemorial. However, the concern is whether these practices are being kept alive or not. Are they being transferred? Let's see what does the kids have to say about this. ठीक है, तो हम लोग आपके दोस्त हैं, सिर्फ बात करना है आपसे, ठीक है, और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे अपन लोग साथ में, राइट? ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट करूँगी कि आप लोग का सबसे फेवरेट सीज़न कौन सा है ये बताओ। कितने जने हैं जिनको समर्स अच्छा लगता है? अच्छा बताओ कि क्यों पसंद है? आपका क्यों है समर फेवरेट? सर्दी में ठंडी लगती है। बारिश। अरे वाह। और विंटर। इतनी ज़्यादा ठंडी होती है नहीं अच्छा लगा? ओके, तो यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, मतलब ऐसा लगता है सबको बारिश में मज़ा आती है। क्यों अच्छी लगती है? क्या बात है, बह तो नहीं जाते हो बारिश में?
हम लोग को क्या करना है, हम लोग सब डिवाइड हुए हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आप लोग को एक स्टोरी बनानी है। हो सकता है वो स्टोरी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, आपने किसी की कहा सुनी हो कि किसी ने बताया हो, पर कुछ ऐसी स्टोरी मज़ा आ जाना चाहिए सुन के, ठीक है। आप बना भी सकते हो, पर बनाना ऐसा कि रियल सिचुएशन पे हो, ठीक है। अभी वो स्टोरी बनानी है। स्टोरी कैसे, कुछ भी, जैसे आपका क्या है, मॉनसून है, मॉनसून की स्टोरी बारिश के रिलेटेड होगी। आपका क्या है, समर है, वो गर्मी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इन स्टोरीज में आप ऐड कर सकते हो आपका बचपन कैसे रहा है, क्या क्या करते हो, बड़े लोग क्या करते हैं, एक बार ये हुआ वो हुआ, और उस कहानी से सीखने को क्या मिलता है। सबकी सहमति से आपको एक स्टोरी बनानी है। मानसून सीज़न एक बहुत अच्छा होता है और अच्छा होता है। बारिश के सीज़न में किसानों को बहुत लाभ होता है और हरियाली होती है, बहुत अच्छा होता है। पर वो ज़्यादा बारिश भी किस काम की, जो सब बर्बाद कर दे। जैसे कि हम लोग बारिश के मौसम में पकौड़े और चाय इस टाइम में खाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या पता हम 10 साल बाद ये सब न करें। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि सिचुएशन के साथ हमको बदलना पड़ता है। और जैसे कि पिछली बार जोधपुर में बहुत सारी बारिश हुई थी, इसलिए सबके बहुत नुकसान हुआ था, घर टूट गए, बहुत हो गया। समर पे हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे जिसमें डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें, जो लड़का होता है रोहित नाम का एक लड़का होता है, जो अपने जो भी डेवलपमेंट वो देखता है वो अपनी नोटबुक में लिखता था। तो उसको काफ़ी किताबें लिखना और बहुत पसंद था। तो इसमें वो अपनी मम्मी से पूछता है, जब मम्मी है ना पेड़ के नीचे बैठी रहती है, तो मम्मी से पूछता है, मम्मी आप शाम के वक्त हमेशा पेड़ के नीचे क्यों आके बैठ जाते हो? तो मम्मी बोलती है कि बेटा आप लोग तो दिन सब कमरे में ही रहते हो, आप अपना काम करते हो, आप अपने, आजकल के लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं हर काम करने में, लेकिन पहले के ज़माने में सब लोग मिलकर के अपनी हर बात शेयर करते थे, कल हमने क्या किया, कैसे किया, हर मोहल्ले के बच्चे खेलते थे साथ में आके। पर आजकल के घर के ही बच्चे नहीं खेलते अपने बच्चे के साथ, हमेशा अपने फ़ोन में लगे हुए रहते थे, कोई भी अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था किसी के साथ। पहले के ज़माने में गिल्ली डंडा खेलते थे, सतोलिया खेलते थे, बंटे भी खेलते थे, खूब मज़े से खेलते थे, पेड़ों के नीचे जाते थे, आम तोड़ते थे। अब तो हर घर के नीचे पेड़ है, हर घर के पास पेड़ है, तो पेड़ आम तोड़ लेते, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पहले तो 1-2 पेड़ हुआ करते थे, बगीचा हुआ करता था बहुत सारा, तो माली खड़ा रहता था, आराम से जाके पेड़ पे तोड़ते थे, तो माली मारता था, भाग कर आते, बहुत मज़ा आता था। और अब के ज़माने में किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, दुकान से सब्ज़ी लेकर आ गए, ठीक है, खाली प्लास्टिक के बैग्स में लेकर आ जाते हैं, कोई भी है ना प्लास्टिक का हर यूज़ कर लेते हैं, बैन नहीं हुई है अभी तक प्लास्टिक। मुद्दा हमारा 2 था, जो आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं, मुद्दा 2 था। क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि जब आप लोग कहानियाँ बता रहे थे तो आप लोग हमेशा ये बता रहे थे, कहीं ना कहीं आपके बातों में ये सब चीज़ें छुपी हुई थी कि पहले कुछ होता था, अब कुछ हो रहा है, और किसी ने ये भी बोला था कि आगे जाके शायद ये ना हो। आप इस विषय में थोड़ा सोचना शुरू करें कि चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। वैसे बदल तो बहुत कुछ रही हैं, लेकिन जो मौसम है वो कुछ ज़्यादा ही बदल रही है। Though these kids are aware of the changes that are in motion, but somewhere they lack the knowledge or the basic understanding of the science behind it. To draw a line of conclusion, what we can say is that there is a lot of work in front of us, in which the primary part would be that of instilling the power of asking questions like why, when and how, not only in our next generations but also in our present generations. We felt a gap between the demeanor of the younger and present generation and the gifts from the past generation. Yes, we are talking about the various water bodies dotting the city of Jodhpur.
The importance of these jhalras and bawris have now become narratives for sale to the tourists. They no longer serve the purposes that they once used to. No women of any house come here to collect water anymore. There are no elderlies who come here in a hot summer afternoon to rest. These water bodies are no longer the cornerstones of these communities. Most of them are dirty. Some have been cleaned and only one is said to have drinkable water. But apparently, researchers showed us test results that even that is contaminated. कहाँ का पानी पिया आपने? सर यही का जैसलमेर। अभी तो आज अगर जैसलमेर का आप पानी पी रहे हैं तो it is a contaminated water, contamination because of the sewage. Okay, sewage water is contaminated. Here's a lady for whom the water body near her house was the central piece. तो जोधपुर के अभी जो महाराजा है उमेद भवन पैलेस में रहते हैं, जैसा मैंने बताया कि सेम डे उसी टाइम इनका जन्म हुआ। तो उनका जन्म जैसे ही हुआ तो किले के अंदर तोपें छूटी। तो इनकी नानी अक्सर इनको कहती थी कि तू जोधपुर महाराजा के साथ जन्मी है। अच्छा, सेम डे। बाबा से बात करो। और पानी आप कैसे रखते थे? आपके नहीं, नोट तो कैसे? पानी टूटी है, सिर्फ एक ही हमारी गली में। जब मैं रहूँगा बट एक टूटी ही। जब सब मोहल्ले वाले होते थे लैंड लगाते थे, वो मटकी दे देता, वो कोई दे देता, फिर लड़ी से ठोकी से ठोकी से वो क्या पहले मैं भरूँ पहले मैं भरूँ, तो ऐसे आ रहा। पहले घर में नहीं थी टूटी। अच्छा, ये तो मैं थोड़ा 17 साल हुई थी तो घर में टूटी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी। तो कैसे मटकी से लाते थे पानी? नहीं। और फिर एक कुआ था, आप यहाँ जाओगे रास्ते में 2 कुआ है, वहाँ से उठ के ऊंचा के लाते। अच्छा, भुजैया होती है मटकी एक बार में उठा लेते? हाँ, वो छोटा छोटा इतना कर से उठा के लिया, उसके ऊपर वे छोटी चरी देते थे। हाँ, वो भुजैया आती है, भुजैया साथ में हम जाते। अच्छा, छोटी मन्ने दे देता, वो भुजैया बड़ी ले लेती। हाँ, वैसे आते। आज आपको देखो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा, ये मैं पूछ के अच्छा, देता ना तो बीमार पड़ जाती है। अच्छा, कोरोना में भी क्या चुपके आ जाते थे, इधर घूम के वापस आते। यहाँ के पास छाने से आ जाती। आपकी दोस्त है? अच्छा, मैं इनकी खुशी का राज आपको बताता हूँ कि ये दूसरों को देखकर खुश होते हैं। किसी को देखकर दुखी नहीं होते, जलते नहीं है। इसके लिए आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है। Like any other woman of her times, her daily routine was aligned to the local factors like when does the sun come out, which part of the day is too hot and must be avoided, what to eat and what to wear. The knowledge surrounding these things can still be found with these cultural bearers, the elderlies, but thanks to how life has become now a fast-paced rat race, soon there will be no living records but just written books like the Western Rajputana States by Archibald Adams. But again, it is not only those past ways of life, but also the science and skill which was used to make Jodhpur self-reliant on water systems is soon to be lost. To know why such immaculate systems are now completely obsolete, we need to know that firstly, the community of people who had built such water bodies are now lost. By lost, we do not mean the entire community is lost, but we are trying to emphasize on the fact that with time they lost their jobs and eventually change of livelihood, and now the art is lost due to lack of knowledge transfer. I'm very interested in the historical structures, particularly related to water harvesting. This has always interested me. I came here, I think it was 2016. I was born in France, in Nice. My mother was an artist. I feel like a cosmopolitan person. I feel like a person that belongs to the world, not to any particular area. And for this reason, I feel I could come to India and partake of the life of people and try and contribute something that I'm an enthusiast about, and say to people, look, here's something you've forgotten, something you've ignored, and you need to do something about this. So that's what I'm trying to say by what I do. I want to say to people, here, bring these things back to life, learn
from how they used to harvest water. Learn from your past generations how they dealt with water and the marvelous techniques India developed. I was discovering, that these buildings, these stepwells, are much more impressive buildings than they were, from the first point. When you see one of these jalras or bauris, they're not very impressive. They're full of water and they often have quite a lot of fish in. They seem to be little sort of ecosystems. So, and they're often dirty. That doesn't impress people. We have one that we lock up. We prevent people going in and spoiling it. So it's got turtles in, it's got full of fish, and it's a very big building that we know the size of it because we actually cleaned it. We cleaned all the flights of steps down. It was a huge building. We've done this one that is the Satyanarayan Bauri. I usually try to get a few workers because people don't come forward, volunteers don't come forward. People often volunteer, but they don't come forward. That's different. People want it, they want the idea of helping to clean a stepwell, but the practical side of it doesn't materialize. So that's not that, it is dirty, hard work, and so people don't like this idea. Did you ever get this opportunity to meet His Highness and... Yes, I did. He gave me some awards. He gave me the Marva Ratna Award. So, how many water bodies have you cleaned in total? Well, that's probably now, it's numbered. I have, there are over 10, because these bauris were made to be used by the local communities that were really dependent on them. True. They had no other alternative water sources in those days. True. The pipelines weren't there. Yeah. The new pipelines that come from the Indira Gandhi Canal and so on. All that is relatively recent. Well, we for example, we would have drained this down, and we found a meter of mud with the pump here. Okay. This pump would have been turned on regularly, and as long as the water went down, during the dry season we were doing it, and we found ourselves facing a meter deep of mud down here. Meter deep? Yeah. Here or at the end? Down here, in these next stages. There was a meter. And we really had to go through it, because it had not, as far as I know, it had never been cleared. This was the first time. Okay. So you pumped out the water? First the water was pumped down. Yeah. And the PHED were quite cooperative. They do cooperate when they know what we're trying to do. They seem to be cooperative, and Mr. Vyas of the PHED, he's very helpful to us. We don't find that the case so much with the government, Nagar Nigam. Yeah. They don't appear to understand what we're trying to do. I think that's part of the problem. Because though we've been talking to them for some time, but they don't appreciate, what we have to do when we clean them. They're not really concerned about these bauris. They have ignored them. The government has basically ignored the bauris completely. Well, there were a few volunteers. The people in those times were volunteering to help us. Okay. They understood the importance of cleaning these places, I think. About 10 people? No, we never had 10. We had 2 to 3 maximum. Okay. 2 to 3. So, the work itself was just really difficult. I can't explain how difficult it was. I'll never be able to do that again. Because I just don't have the labour. I don't have the labour that I need. And labour is the all-important thing, to walk up this flight of stairs 50 times a day. That's not easy with 2 buckets. It's just not, it's really
strenuous and arduous work, and it needs, it needs labour. It needs heavy labour to do it properly, and I'm no longer fit enough to do that sort of work, on my own, or as I used to do it, with a friend or two. I had friends who would try and help me, but Rajesh is now busy engaged in other things. I don't know what he's doing at the moment, but he's a friend of mine. I had an alcoholic friend who was taking, I managed to pay him even. I had the help from the Maharaja's people. They would give us a little bit of money to cover our cost of our labour. So that way we were able to hire one or two labourers. This calls for an organisation to do it. It must be done with an organisation. Well, it's not a one-man job. This is a very big, heavy-duty job. It needs proper management. And I can't do this any longer because I'm not strong enough. Are you emotionally connected with this place? Yes, I am. I come here regularly to swim here, and I studied the wildlife here, and I make friends with my turtle, my little turtle. You see there, he's a great character, and I've made very good friends with him. This is the first time I've ever befriended a turtle. But the turtle is amazingly quite a highly intelligent and sort of, emotional creature. It actually seems to have affection. And you don't think of a turtle as a sort of creature with lots of emotions, but I've found this one does have emotions. Well, I would go to the schools and try and bring them to see these places and to talk to them about these water bodies, because that's what we haven't done. We haven't brought the schools into this at all. We haven't shown schools they could come and even they could learn swimming. That could be a very good thing. These are amenity points. And if they're kept clean, they're lovely places for learning to swim. They're better than the swimming pool any time. When I'm ignored and treated as an irrelevancy, or sometimes, a lot of local people admire what I do and say that's wonderful what I do, but I find that is touching, it's very touching. Yeah. But I can't go on doing this indefinitely. I don't have the tools, the equipment, the money, or anything to back me up. You see, that's a reality which I can't avoid. And I would go on doing this if I had a really supportive group around what we're doing, because this belongs to India. This is part of Indian history. It's part of the culture of your country. Yeah. And if people can't understand this, there's nothing I can say. There, look at him. He's such a lively chap, isn't he? Look, you see, he's really active. Hello, little turtle. Hello. You see, he's not frightened. Hello. Come on. Come on. Look at him. He can't get out, you see. I'll have to help him a bit. Come on. There you are. What went wrong? Embarking on a trajectory of growth which relied more on contemporary ways rather than the lessons from the history. 2. Failing to mainstream the traditional knowledge in the developmental agenda.
3. Embracing the past only as a narrative to be sold and not as a tool for sustainable life phase. And the last one, the loss of emotional ownership of the gifts from the past. What is perhaps an impediment is the lack of Vinay, an inherent politeness to bow down to the knowledge and lessons from the past and use it to shape a resilient future. Not everyone is devoid of it. Even a foreigner can develop such a sense of agency. In some cases, people have the willingness, leadership, skills, and the resources to foster change. And in some cases, they are just on the brink of giving up, tired of walking alone, weary of battling the odds. Within this story, you may find a relatable story of your own city. What will you do now? Will you leave us thinking that this is just another documentary, or will you pledge to act?